बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है फूड साइंस का। टुडे वी विल डिस्कस again about nutrients and food groups. Our main topic is food groups, but for better understanding, we need to know more about nutrients. Nutrients are very important for our health, and nutrition based on nutrients found in food, and if we use properly and if we use adequately nutrients, it means we are taking a balanced diet. So protein, first of all, we discuss protein. Protein is most important for our body, and best source of protein is meat, meat, poultry, fish, eggs, cheese, gelatin. These are best sources of protein. इसके अलावा legumes, pulses, beans are also a very good source of protein. Actually, there are two kinds of proteins: incomplete proteins and complete protein. Complete protein, the sources of complete protein is meat, egg, cheese, etc., milk. And the sources of incomplete protein is legumes, all type of dals, and beans, etc. So for our best growth, complete protein is very necessary. अगर हम लेस क्वांटिटी में भी ले रहे हैं कंप्लीट प्रोटीन को, तो ये हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी, फंक्शंस परफॉर्म करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, at breakfast we take a glass of lassi or milk, egg, boiled or fry egg, and 2 slices of bread or a chapati. It means our meal is best. Breakfast is good because it provides a good quantity of it is providing a good quantity of protein. So we should try to take protein daily. It is very necessary for our growth, muscles, or for our body functions. We will inshallah discuss these nutrients in detail, so you will better able to understand the importance of nutrients. Second is carbohydrate. Protein is also called it is a type of food which called grow food. ग्रो फूड मीन कि जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी हैं. तो प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रो फूड्स, GROW, ग्रो फूड्स. और नेक्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दोनों को इकट्ठा ही मैं कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि दोनों बोथ आर कॉल्ड go foods. Go foods mean they supply energy to the body. It doesn't mean that protein is not able to provide energy to our body. Protein also provide 1 gram of protein provide 4 calories. The question is that what is calorie? Calorie, जिसको हम उर्दू में हरारा कहेंगे. Calorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg, यानी 1 kilogram, 1 kg of water by 1 degree centigrade. Again repeat, a calorie is the amount of heat required
to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree centigrade. For example, if it is 15 degree centigrade, then it becomes 16 degree centigrade. जब टेम्परेचर 15 से 16 को एक्सीड कर रहा है तो इट मीन्स के कैलोरीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर। तो इसमें हमने इस चीज़ को नहीं देखना, इसमें हमने देखना है कि हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए हमें अपनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, और इन्हीं की वजह से हम अपना फंक्शंस जो हमारे फंक्शंस हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ फूड, मेन फंक्शंस ऑफ फूड कौन से थे? फर्स्ट ग्रोथ, and second growth, repair, and second food provides heat, and third maintenance of systems or regulate systems. तो ये मेन 3 फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी 1-2 फंक्शंस और भी होंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, वो इसका इन्फ्लुएंस भी है फूड का हमारे मूड पे और हमारे रिलेशंस पे। यानी अगर हमने सोसाइटी में अच्छे रिलेशन एक दूसरे से करने हैं तो हम फूड ट्रांसफ़र करते हैं एज अ गिफ्ट, और दावतें होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये जो बेसिक फंक्शंस हैं फूड के वो दे आर 3. So I was telling you about protein. Protein also provides calories, energy. Or what is calorie again? A calorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree centigrade. ये मैं आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ कि कैलोरीज क्या होती हैं। अच्छा, प्रोटीन इज ग्रो फूड एंड 1 gram of protein provides 4 calories. Now we come to carbohydrates and fats. So carbohydrates and fats both are called go foods. Go foods mean go foods means they supply energy to the body to perform functions. और इसके एग्जांपल्स क्या होंगी, सोर्सेज क्या होंगे? फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, there are 3 types of carbohydrates: monosaccharides, disaccharides, polysaccharides. और इसकी जो बेस्ट सोर्सेज हैं आप अपनी डेली लाइफ में देखिए, राइस, पोटैटोज़, हनी और गुड़। इन शुगर, गुड़, especially गुड़, शक्कर, there is 100% carbohydrate, so they are best source of energy. इसीलिए हम इन विंटर सीज़न वी यूज़ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं। नॉट इन समर में हम मीठे को इतना पसंद नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो मीठी चीज़ें हैं लाइक शकंदी, लाइक गुड़, हनी, शक्कर, चूँकि ये हैं नेचुरल सोर्सेज, यानी ये बेस्ट सोर्सेज हैं। शुगर इज़ रिफाइंड, तो वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है फॉर हेल्थ। तो जो हमें बेसिक मिल रही हैं चीज़ें, जैसे गन्ने से मिल रही हैं, शुगर केन से, बीट रूट भी है इसका सोर्स, तो हमें उससे जो मिल रही हैं चीज़ें मीठी, वो हम कब इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा? वो हम इन द विंटर सीज़न, बिकॉज वी नीड मोर एनर्जी इन विंटर दैन समर में हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इतनी नहीं चाहिए होती कंजप्शन मीठे की, क्योंकि ये हमें एनर्जी दे रहा है, बहुत बेस्ट एनर्जी दे रहा है। सो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आई वाज टेलिंग यू अबाउट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपका सीरियल्स भी हैं, इसमें सारे सीरियल्स आ जाते हैं। आपका ये जो है गंदम वगैरह, ये भी वीट, और पोटैटोज़, राइस, शुगर, हनी, गुड़, एट्सेट्रा। फैट्स देयर आर 2 types of फैट्स। एक वो काइंड है फैट्स की जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो मतलब रहती है, लिक्विड ही रहेगी। सो विच टाइप इज वेजिटेबल, लाइक वेजिटेबल ऑयल्स। मस्टर्ड ऑयल है आपका, ये सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल,
और इसके अलावा ये जो आपके दूसरे ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, और इसके अलावा आपके ये जो है कलवंजी का तेल है, राइट। ये सारे जो आपके वेजिटेबल्स हैं, इनके सीड्स से हम जो ऑयल ले रहे हैं, कॉर्नफ्लावर है, और इसके अलावा आपका एक और भी है सनफ्लावर है, ये सारे, और इसके अलावा बहुत एक लंबी लिस्ट है ऑयल्स की। ये सारे क्या होंगे, ये ऑयली फॉर्म में ही रहेंगे, चाहे समर हो चाहे विंटर हो। बट अगर आप देखें अपने घी को, देसी घी और मक्खन, इन सब चीज़ों को अगर आप विंटर में देखें तो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होंगे, बट इन विंटर, सॉरी समर में ये लिक्विड में आ जाएंगे। तो ये 2 टाइप्स हैं हमारे ऑयल्स के लिए। और बेस्ट ऑयल किसको कहा जाता है, वो ऑयल की फॉर्म जो लिक्विड ही रहती है, यानी जो वेजिटेबल सोर्स से हमें हासिल हो रहा है, और सेकंड फॉर्म जो एनिमल सोर्स से हमें हासिल हो रहा है वो हमें कम लेना चाहिए। तो अब बेटर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑयल्स की फॉर्म में फ़ैट को लें, और इसमें बेस्ट यही तरीका है कि हम नेचुरल ऑयल्स लें। नेचुरल ऑयल्स यानी हम सरसों के तेल को यूज़ कर सकते हैं फॉर कुकिंग, ऑलिव ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऑलिव ऑयल को ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि दूसरे हम नेचुरल ऑयल्स जो हैं, मैंने भी आपको बताया, वो ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल है, और बाज़ कंट्रीज़ में तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब कोकोनट ऑयल जो है, ये इसमें थोड़ी वेरिएशन है कि ये इन विंटर सीज़न ये थिक हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो हम मॉडरेट अमाउंट में इसको ले सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारे बाकी हैं जो सॉलिड फॉर्म में रह जाते हैं फैट्स, जैसे बटर बताया मैंने आपको, और घी, देसी घी बताया, ऐसे आम आपको बनास्पति घी मिल रहा है मार्केट में, तो ये सॉलिड स्टेट में है। अब इनमें जो नेचुरल हैं वो हम यूज़ करें, वो हमें यूज़ करने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए। मैं अगेन आपसे कह रही हूँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा ऑयल्स इस्तेमाल करें। अगरचे के हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे हैं, जैसे देसी घी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, बॉडी कंडीशन क्या है। आप नॉर्मल हो, आप जो है वो आपको कोई इलनेस है, या आप कोई ऐसी मुस्तकिल बीमारी में, जैसे आप हाइपरटेंसिव हो, डायबिटिक हो, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, उस हिसाब से हम इनकी कंजप्शन करते हैं। तो ये बहुत डिटेल हो जाएगी इसमें, तो आपको समझने के लिए सिर्फ ये चीज़ें हैं कि फ़ैट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट्स। अच्छा, एक वेजिटेबल फ़ैट्स हैं और एक एनिमल सोर्स से जो हमें मिल रही हैं वो फैट्स हैं। So carbohydrates and fats are called grow foods, means they grow foods, they provide energy. Protein is grow food, carbohydrates and fats are go foods. Third type of food is regulating foods. Or regulating food, in regulating foods we keep minerals, vitamins and water, because they regulate our system. मिनरल्स किस में पाए जाते हैं ज़्यादातर, उनका बेस्ट सोर्स होता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। लेकिन मैं आपको वही बात कि ज़रूरी नहीं होता कि एक फूड में सिर्फ मिनरल्स ही पाए जाएंगे, या एक में सिर्फ विटामिन ही पाए जाएंगे, एक में सिर्फ प्रोटीन ही पाए जाएंगे। जैसे मीट में ज़रूरी नहीं सिर्फ प्रोटीन हो, मीट के अंदर आपके मिनरल्स भी आएंगे, मीट के अंदर आपके विटामिन्स भी आएंगे, यानी वो भी पाए जाते हैं। प्रोटीन तो है ही है, लेकिन इसके अलावा बाकी आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। सो फॉर मिनरल्स, अगर हम इसके सोर्सेज देखें, मिल्क, चीज़, मीट, लिवर, फिश, एग्स, पोल्ट्री, पीस, बीन्स, दाल एट्सेट्रा, मिनरल्स में ये पाए जाते हैं। आपको मैं इस एग्ज़ाम्पल दूँ समझने के लिए, जैसे इन मिल्क कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज़ फाउंड, और बेस्ट सोर्स है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का मिल्क, और हमें डेली इसका इंटेक लेना चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन जो फॉर्म कैल्शियम की मिल्क में पाई जाती है वो किसी और फूड प्रोडक्ट में नहीं पाई जाती।
फूड में नहीं पाई जाती। तो इसी तरह से अगर हम देखें विटामिन्स में, तो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन्स और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेकिन इसके साथ साथ मिल्क, चीज़, एग्स, फिश, मीट, पोल्ट्री, लिवर, किडनी, बीन्स हैं, और इवन आपके फैट में भी विटामिन्स पाई जाती हैं। अब आप कहेंगे फैट में कैसे विटामिन्स पाए जाते हैं, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। आप इतनी डिटेल सुन के परेशान मत होइएगा, ये मैं आपको इंटरेस्ट के लिए बता रही हूँ, आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए आपको बता रही हूँ। तो विटामिन्स की 2 टाइप्स हैं, हमें इनका पता होना चाहिए, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अच्छा, जब आप ऑयल लेके आते हो, व्हेन यू ब्रिंग ऑयल फ्रॉम मार्केट, तो अगर आप उनके पैक्स देखें, पैक्स पे क्या लिखा हुआ होता है, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, डी, ई एंड के। अब विटामिन ए, डी, ई एंड के क्या हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होंगे, पानी में हल पजीर विटामिन, फैट सॉल्युबल मीन चिकनाई में हल पजीर विटामिन, और यानी ऑयली चीज़ों में ज़्यादा पाए जाते हैं फैट सॉल्युबल। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो उनमें पाए जाते हैं जिनमें वाटर है, जैसे सिट्रस फ्रूट है तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं, विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसका पूरा विटामिन्स की पूरी उसमें पूरा ग्रुप पाया जाता है, बी ग्रुप पाया जाता है, तो उसको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये विटामिन्स की टाइप्स हो गई। अब मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स ट्रेस भी हैं और माइक्रो भी हैं, मैक्रो भी हैं, यानी वो भी जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी को चाहिए होते हैं और वो भी जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और मिनरल्स की जो टाइप मैंने अभी बताई, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, वो हमें चाहिए होता है ज़्यादा। इसके अलावा आयरन चाहिए होता है, ज़ाहिर है ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़रूरी है आयरन। अच्छा, फिर इसके अलावा अब देखिए कि हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा बहुत से विटामिन्स हैं, वो सॉरी मिनरल्स हैं, जैसे वो हो गया हमारा आयरन है, आयोडीन मैंने भी आपको बताया है, इसके अलावा आपका मैग्नीशियम है, ठीक है। और एक पूरी लिस्ट है जो हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि हमें मिनरल्स जो है वो कम क्वांटिटी में भी कुछ चाहिए होते हैं और कुछ हमें ज़्यादा क्वांटिटी में भी चाहिए होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद वाटर आ जाता है, तो वाटर की इंपॉर्टेंस से तो कोई इनकार नहीं है, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज़ अ रेगुलेटिंग फूड है। और इसके अलावा ये क्या है, ये ग्रो फूड भी है। अब हमारे बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, इट इज़ कंपल्सरी। अब वाटर की एब्सेंस में क्या होगा कि बॉडी अपने फंक्शंस को मेंटेन नहीं कर पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये मेंटेन करता है, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और इसके अलावा क्या है कि वाटर जो है वो आपकी बॉडी को मॉइस्ट करता है, फ़्लो मुमकिन है आपकी बॉडी के अंदर वाटर की मौजूदगी में। अगर हम वाटर इंटेक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, और जब पानी की कमी हो जाएगी तो हमें हेडेक होगा, और इसके अलावा क्या होगा कि हम हेल्दी फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके फंक्शंस को थोड़ा सा देखें तो आपकी बॉडी को ये रेगुलेट करता है, उसके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। और आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें भी लुब्रिकेंट के तौर पे भी ये पाया जाता है, यानी रगड़ नहीं होती जॉइंट्स में, आपस में जब दो जॉइंट मिले हुए होते हैं तो आपस में रगड़ नहीं होती। फैट तो है ही है, लेकिन वाटर भी आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें पाया जा रहा है। और इसके अलावा ये एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स और जो अदर केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो इसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम ग़िज़ा खाते हैं तो अगर हम पानी का इंटेक नहीं लेंगे तो ग़िज़ा हमारे डाइजेस्ट नहीं होगी, वो उनको अपने अंदर डिज़ोल्व करता है पानी, और फिर जो है वो बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में वो पहुंच रहा है। और ये इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट के लिए तो मैंने बताया इम्पॉर्टेंट है, यानी न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, मूव करता है। हाँ, इसके अलावा ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी आपकी बॉडी से आउट करने में हेल्प करता है, इसीलिए जो लोग ज़्यादा पानी का इंटेक करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती।
मज़ीद भी इसके फंक्शंस हैं, वी विल डिस्कस दम लेटर। अभी हम न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सा जनरली देख रहे थे। अच्छा, अब ये क्यों ज़रूरी था आज न्यूट्रिएंट्स को देखना थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में, क्योंकि टू अंडरस्टैंड फूड ग्रुप्स we need to know more about nutrients, functions of nutrients. So you should learn the names of nutrients, and you should learn some important functions of nutrients for best understanding of food groups. Our main topic is food groups. सो फूड ग्रुप्स अगर हम देखें तो आपके इस लेवल पे, आपके स्कोर्स के लेवल पे, वी शुड नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि फूड ग्रुप्स को डिवाइड किया जा रहा है आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके फंक्शंस की बेस पे। यानी हम फूड ग्रुप्स को फंक्शंस की बेस पे डिवाइड करके उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको फंक्शंस की बेस पे डिवाइड करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि फूड ग्रुप्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स की बेस पे बने हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमें फूड ग्रुप्स जो हैं उनके बारे में जानने की ज़रूरत क्यों है? वाई we know about why there is a need to know about food groups, आखिर क्यों ज़रूरत है इसकी? तो जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं they divide food into different groups for best choice। हमें उसके सिलेक्शन के लिए, अच्छे फूड की सिलेक्शन के लिए फूड को डिवाइड किया गया फूड ग्रुप्स में, सो दैट हम अच्छा बेस्ट फूड उसमें से चूज़ कर सकें उन ग्रुप्स में से ऑन डेली बेसिस। अब अगर आप इस टेबल में देखें तो लुक एट दिस टेबल, न्यूट्रिएंट्स, देयर फंक्शंस एंड देयर सोर्सेस। there is a list of nutrients, their functions and sources. For example, if we read about energy giving nutrients, तो इस लिस्ट में कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। all these three provide energy। जैसे मैंने बताया था कि फैट्स का 1 ग्राम हमें 9 कैलोरीज दे रहा है, मीन्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी फॉर आवर बॉडी फंक्शंस। फिर प्रोटीन है, 4 कैलोरीज दे रहा है। और कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आप इसको 4 ग्राम ही कंसिडर करें कि कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम जो है वो हमें 4 कैलोरीज दे रहा है, 4 कैलोरीज कंसिडर करें इसे। अच्छा, फिर इसके सोर्सेज भी साथ में बता दिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेड, राइस, शुगर, हनी, ये जो है स्वीटनर्स वगैरह एट्सेट्रा इसके अंदर आएंगे। फैट्स में बटर है, वेजिटेबल ऑयल है, यानी 2 टाइप्स ऑफ ऑयल्स को उन्होंने बताया। और प्रोटीन में मीट, फिश, एग्स, इसके अलावा दूसरा वेजिटेबल ग्रुप भी है, यानी एक प्लांट एनिमल ग्रुप है, प्रोटीन का एनिमल सोर्स है, दूसरा प्लांट सोर्स है, प्लांट सोर्स में पल्सिस, बीन्स एट्सेट्रा आते हैं। तो ये जो है ग्रुप, ये क्या दे रहा है? एनर्जी गिविंग ग्रुप है, राइट। नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखें तो इसको हम बेस्ट समझेंगे पिरामिड के थ्रू, जो आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी आप इनको इनके फंक्शंस के हिसाब से इसको ग्रुप वाइज समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो ग्रोथ और रिपेयर से कंसर्निंग है, और इसमें हमारे कौन कौन से आ रहे हैं? प्रोटीन्स, मिनरल्स, एलिमेंट्स आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन किन किन में पाया जा रहा है और मिनरल्स एलिमेंट्स किन किन में पाए जा रहे हैं। मैं ज़रा इसको जल्दी लेके चल रही हूँ आगे है हमारा प्रोटेक्टिव कंट्रोल ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, यानी मीन्स जो हमारे सिस्टम्स को रेगुलेट कर रहा है, प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है। उसमें प्रोटीन्स भी आएंगे, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर भी आएगा, राइट। अच्छा, अब आप इसको बेस्ट वे में समझ सकते हैं अपने पिरामिड के थ्रू, फूड गाइड पिरामिड इसे कहा जाता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं इसको। ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था इन 1992 by United States Department of Agriculture। द चेंजिंग जो हमारी चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स हैं,
उसने हमारे लाइफस्टाइल को और हमारी फूड प्रोसेसिंग को बहुत ज़्यादा तब्दील करके रख दिया। देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन द पास्ट वी वर वेरी यूज टू टेक लस्सी, सत्तू, हम ड्रिंक्स के तौर पे ये चीज़ें लिया करते थे। बट नाउ डेज़ वी यूज़ बेवरेजेस हम ले रहे हैं, ये जो है आपके कोला ड्रिंक्स वगैरह है, ये चीज़ें ले रहे हैं जो कि हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है ही नहीं। तो जो जो लाइफ आगे बढ़ी उसने चेंजिंग जो हमारा था डाइटरी हैबिट्स थे, उसने हमारी लाइफस्टाइल जो था उसको भी चेंज किया, और उस लाइफस्टाइल ने हमारी डाइटरी हैबिट्स को भी चेंज किया, यानी दोनों रिलेटेड ही हैं। अच्छा, अब जो है ये जो फूड पिरामिड है, ये हमें इस चीज़ को गाइड करने में हेल्प देगा कि which type of nutrients are मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से हैं जो लेस्ट इम्पॉर्टेंट है। फंक्शंस के हिसाब से नहीं है, इनटेक के हिसाब से है, यानी क्वांटिटी which what should be the quantity of food groups, what should be quantity of nutrients। हमें nutrients की quantity के बारे में हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है। If you look at this pyramid, then you can better understand. For example, at the top there is fats, oils and sweets. फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, द इंटेक शुड बी स्पेरिंगली, यानी कभी कभार हमें ये यूज़ करना चाहिए, हमें कॉन्टिन्यूसली नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर हम डेली केक्स ले रहे हैं, हम डेली ये मायोनीज़ और इसका इंटेक ले रहे हैं, तो इसकी भी रिकमेंडेड एक क्वांटिटी हो सकती है। इट डजंट मीन कि वी शुडंट टेक फ़ैट, हमें फ़ैट नहीं लेना चाहिए। फ़ैट के अपने बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। फ़ैट खुद लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, जॉइंट्स की जगह पे फ़ैट्स आपकी बॉडी को वो रख रहा है, ऑयली रख रहा है। और इसके अलावा ये कि फ़ैट आपको एलर्जी से बचा रहा है, जैसे स्किन एलर्जीज होती हैं, तो बहुत उसके भी फंक्शंस हैं। लेकिन हमें फ़ैट्स एंड ऑयल जो है वो कम क्वांटिटी में लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। सो वी शुड यूज़ स्पेरिंगली, कभी कभार हम यूज़ करें, और ऑटोमेटिकली वो हमारे फूड में, हमारे जब हम फूड को कुक करते हैं तो उसमें यूज़ हो जाता है। ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा आ जाता है मीट, पोल्ट्री, फ़िश और ड्राई बीन्स, एग्स एक्सेट्रा। नट्स भी इसके अंदर आएंगे, प्रोटीन होता है नट्स में भी, ऑयल भी है। तो इस एक ये हमारा है ग्रुप, और दूसरा जो है वो मिल्क, योगर्ट और चीज़ ग्रुप है। तो ये जो दोनों हैं ये साइड बाय साइड चल रहे हैं, यानी एक मिल्क ग्रुप है, एक मीट ग्रुप है। अच्छा, अगर इस पर गौर करें तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि दोनों क्या हैं, ये प्रोटीन ग्रुप है। हम इसको प्रोटीन को फूड ग्रुप नहीं कहेंगे, लेकिन ये प्रोटीन बेस्ड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप जो है हमारा वो प्रोटीन बेस्ड ग्रुप है, यानी इस ग्रुप के फंक्शंस वही हैं जो प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें जो फूड पाए जा रहे हैं उसमें प्रोटीन के वो बेस्ट सोर्स हैं। तो इसमें इसकी हमें इनटेक कितना चाहिए, यानी हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये जानना है कि हमें डेली बेसिस पे हमारी सर्विंग क्या होनी चाहिए इन फूड ग्रुप्स की, कितनी क्वांटिटी हमें डेली लेनी चाहिए। तो 2 to 3 सर्विंग होना चाहिए मिल्क ग्रुप और मिल्क प्रोडक्ट्स वाली चीज़ें। और जो मीट है, अगेन वो भी प्रोटीन, उसमें न्यूट्रिएंट पाया जा रहा है, तो वो हमें 2 to 3 सर्विंग होनी चाहिए। अच्छा, प्रोटीन के अलावा इसमें दूसरे भी हैं, लेकिन मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो हम बेसिक न्यूट्रिएंट हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जो एक फूड में बेसिकली पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। तो 2 to 3 सर्विंग है, यानी बोथ हमें लेने चाहिए डेली बेसिस पे 2 to 3 सर्विंग। कैसे ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स सिर्फ मिल्क ही ले रहे हैं, हम मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, योगर्ट ले सकते हैं, चीज़, हम दही ले सकते हैं। इसी तरह से मीट की फॉर्म में ये नहीं है कि हम सुबह नाश्ते में भी वी आर टेकिंग मीट, एंड एट लंच टाइम वी आर टेकिंग मीट, और फिर इसी तरह से डिनर टाइम में भी मीट ले रहे हैं, नहीं। वी शुड टेक पल्सेस, और हम इसमें लंच में बेस्ट होता है कि हम पल्सेस को यूज़ कर लें, विद राइस कर लें, या हम वैसे कर लें। और अगर पल्सेस के साथ मीट को ऐड कर लेंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा। जैसे हलीम की फॉर्म है,
ठीक है, ब्रेकफास्ट में हम एग ले रहे हैं, तो इसी तरह से हम उसकी शक्ल को चेंज करेंगे। यानी हमारे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से हमने फूड आइटम्स को चूज़ करना है, और चूज़ इस तरह से करना है कि वो डिफरेंट होने चाहिए, वो सेम एक ही चीज़ नहीं होनी चाहिए बार बार, बल्कि हर डिफरेंट फूड हमें लेना चाहिए अपनी डेली रूटीन में। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जाता है वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप। वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप जो है, इसमें अब आप देखें कि ज़्यादा वेजिटेबल पे ज़ोर है। यानी वेजिटेबल ग्रुप वी शुड टेक 3 to 5 servings, एंड फ्रॉम फ्रूट ग्रुप वी शुड टेक 2 to 4 servings। एक्चुअल में जो फ्रूट्स हैं उनका इंटेक तो मस्ट है, ज़्यादा विटामिन मिनरल्स हमें दे रहे हैं, वी शुड टेक देम रेगुलरली, हमें उन्हें डेली बेसिस पे लेना चाहिए। लेकिन वेजिटेबल की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेजिटेबल्स में ज़्यादा फाइबर है। नो डाउट फ्रूट में है फाइबर, लेकिन वेजिटेबल्स बेस्ट हैं, हमें उनका इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए। तो थोड़ी सी बस क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं हम फ्रूट से, कि उसकी हम कोशिश करें कि 3 to 5 सर्विंग्स लें किसी भी फॉर्म में। अगेन अब ये नहीं है कि आप कोई भुजिया बना रहे हैं और यू आर मेकिंग एनी फॉर्म ऑफ सालन, लेकिन ये है कि वी कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ सैंडविचेस, वेजिटेबल सैंडविचेस, और कबाब वी कैन यूज़ विद मीट, हम वेजिटेबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि हम विद इन सैलड्स, हमें रेगुलरली सैलड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो बल्क प्रोवाइड करता है, फुलनेस देता है, आपके पेट भर जाता है जल्दी जब हम सैलड्स खाते हैं। तो हम फिर इतना ज़्यादा दूसरे जो है फूड नहीं लेते, चपाती वगैरह जो रेगुलर चल रहा है वो हम नहीं लेते, तो इससे हमारा वेट भी रिड्यूस होता है। जहाँ तक बात है फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स की फॉर्म भी हमें चेंज करनी चाहिए, जैसे इन द फॉर्म ऑफ मिल्क शेक्स हम फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, हम फ्रूट सैलड्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या होगा कि हम आपके वैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में भी हम फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि हमें किस फ्रूट की ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे हर फ्रूट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा मीठा जो है वो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेप्स हैं, और इसके अलावा आम का बहुत ज़्यादा इंटेक तो नहीं ले रहे। हमें ये चीज़ें भी देखनी है कि वो ना हो जिससे हम बहुत जल्दी जो है वो ओबेसिटी की तरफ चले जाएं, मोटापे की तरफ चले जाएं। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इम्पोर्टेंस से कोई इनकार नहीं है, ये दे आर बेस्ट चॉइसेस। अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा उर्दू का इस्तेमाल करूँ फॉर योर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, कि आपको समझने में ज़रा आसान हो। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट इसमें आ जाता है सेक्शन, वो आता है सीरियल्स ग्रुप के बारे में। सीरियल ग्रुप्स मींस कि इसमें आपकी आ जाएंगे, आपका राइस वगैरह भी आ जाएगा, पास्ता है, ब्रेड है, ये जो आप मैक्रोनीज वगैरह, नूडल्स वगैरह का इंटेक कर रहे हैं वो सारा बहुत रिफाइंड हो जाता है, हमें उसका ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए। अगेन मैं आपको बताऊं, हमें नेचुरल फॉर्म में, जैसे हम वीट ले रहे हैं, गंदम ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि यू शुड टेक वीट इन होल फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म में आप गंदम का इस्तेमाल करें, दलिए की फॉर्म में यूज़ करें गंदम का ज़्यादा। और इसके अलावा क्या हो सकता है आपका कि बहुत जब हम इसको पीसते हैं तो हलीम की फॉर्म में कर सकते हैं आप इस्तेमाल। अच्छा, जब हम इसको पीसते हैं सीरियल्स को, तो क्या होता है कि उनकी ग़िज़ाइयत में, न्यूट्रिटिव वैल्यू में कमी हो जाती है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इन्हें होल फॉर्म में इस्तेमाल करें, यानी ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करें जो कि पास्ट में थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी दलिए की, कि दलिए का इंटेक बहुत ज़्यादा होता था। हाँ, इसकी हमें 6 to 11 सर्विंग्स डेली करनी चाहिए, और इससे कम भी हो सकती हैं, लेकिन मतलब अब किस तरह होगा, एट द ब्रेकफास्ट वी यूज़ सीरियल, एट लंच टाइम वी यूज़ सीरियल। इसके अलावा ये कि मिड टाइम, ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियानी टाइम होता है, मिड टाइम वी यूज़ सीरियल। हम सैंडविचेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फुलनेस देता है ना हमारे कंट्री में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादातर सीरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर एनर्जी। हमें एनर्जी जो है ये एक चीपर, बल्कि चीपेस्ट वे है टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो ये जो ग्रुप है इससे हमें ज़्यादा सस्ता ये हमें तरीका है एनर्जी लेने का। अगर हम दूसरे जो कॉस्टली फूड हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम इस के ज़रिए सीरियल ग्रुप के थ्रू वी कैन गेट एनर्जी।
तो ये इसके अलावा ये है कि इसमें आप जब डिनर टाइम होता है तो उसमें भी आप यूज़ करते हैं, जैसे आप राइस वगैरह ले रहे हैं या चपाती ले रहे हैं तो आपको सीरियल मिल रहा है। ठीक है, दलिया भी इसके अंदर आ जाता है, पॉरेजेस जो हैं वो भी हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। आपको पता है जौ का दलिया बेस्ट है, हुज़ूर सल्लम बहुत शौक़ से खाते थे। और तलबीना कहा जाता है कि वो फॉर एनर्जी, फॉर टेकिंग एनर्जी वो तलबीने का इस्तेमाल करते थे जिसमें जौ इस्तेमाल होते थे। तो ये बेस्ट है, आपको एनर्जी देता है और ये कि आपका मेंटल वर्क के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वी शुड यूज़, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हमें पॉरेजेस का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये तो एक थोड़ा सा मैंने आपको फूड ग्रुप्स के बारे में बताने की कोशिश की। अच्छा, अब ये देखिए कि लुक एट दिस पिरामिड के इसमें इन्होंने इसको डिवाइड किया है 4 ग्रुप्स में। फॉर योर इंफॉर्मेशन, 4 ग्रुप्स वर डिवाइडेड इन 7 ग्रुप्स। यानी इसको 7 ग्रुप्स में भी डिवाइड किया जाता था, किया जा रहा है अभी भी। फिर इन 5 ग्रुप्स, और फिर इसको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी बिगनर्स के लिए, इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है फूड ग्रुप्स को। यानी एक ऐसा ग्रुप जो आपको जिस वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपको बिल्डिंग मटेरियल दे रहे हैं, यानी प्रोटीन रिच फूड है उसके अंदर। जैसे अभी आपने देखा मीट एंड मिल्क ग्रुप दोनों आ गए, प्रोटीन रिच फूड है ये। सेकेंड, वो ग्रुप जिसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स हैं, रिच है विटामिन एंड मिनरल्स, वो कौन सा हो गया, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रही हैं। और थर्ड वन क्या है, जिसके अंदर आपको मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, और उसी के अंदर फिर फैट्स को भी रख दिया जाता है। तो बेसिकली जो है, यानी जो अगर हम कहें कि फॉर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग सिंपलेस्ट, जो अगर हम फूड ग्रुप्स को सिंपली डिवाइड करें तो वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने फैट्स एंड ऑयल्स को फिर भी अलग किया है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट वाले ग्रुप में आ रहे होते हैं कि हम जो भी फूड कुक करते हैं तो उसके अंदर हम फैट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए जो है हमारा लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।